ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସାକାର ନା ନିରାକାର। ଆମେ ଅନେକ ସାକାର ଉପାସନା କରୁଥାଉ, ଅନେକ ନିରାକାର ଉପାସନା କରୁଥାଉ। ପ୍ରତି ଧର୍ମରେ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ବୋଲି, ଏମିତି ତ ଧର୍ମ ଏକ, ତଥାପି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ମାନିଛେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନିଛେ, ସେ ମାନିବାକୁ ନେଇକରି ବି ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ପ୍ରତି ଧର୍ମରେ ସାକାର ପୂଜା ଅଛି, ନିରାକାର ପୂଜା ଅଛି। ସାକାର ଉପାସନା ଅଛି, ନିରାକାର ଉପାସନା ଅଛି। ଟିଭିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିବେଟ୍ସ ହେରିକା ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସିକରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାଉ। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଡିବେଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଯେଉଁ ପରିକା ମାନିଥାନ୍ତି ସେଇଆକୁ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ କହୁନେ, ଏଟା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ଯିଏ ଯାହା ମାନିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିକା ମାନିଥାନ୍ତି ସେଇଆ ଠିକ ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି, ସେଇ ପରିକା ତର୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟିଭିରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ସାକାର ଉପାସନା ନିରାକାର ଉପାସନା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିବେଟ୍ ହୁଏ। କିଛି ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ କହନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଠିକ ନୁହଁ, ଫଟୋ ପୂଜା ଠିକ ନୁହଁ, ସାକାର ପୂଜା ଠିକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ବି କରୁଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବେ, ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ବି ସେମାନେ ହଜ କରିବା ପାଇଁ କାବା ଯାଆନ୍ତି, ମକ୍କା ମଦିନା ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ବି ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଠି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଏକ ଘର ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାରିପାଖ ଯାକ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ମନରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ହଜ କରନ୍ତି, ମକ୍କା ମଦିନା ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ସ୍ତୂପକୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଚାରିକଣିକିଆ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଠି ବି ଏକ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ନତ କେ ପଥର। ଜନ୍ନତ କେ ପଥର ମାନେ ଜନ୍ନତରୁ ଗୋଟେ ପଥର ଆସିଥିଲା, ସେ ପଥରକୁ ବି ସେମାନେ ଛୁଉଁଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ବି 30,000 35,000 ଚାର୍ଜ ହେରିକା ବି ଅଛି। ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦରଗାରେ ଗୋଟେ ଚାଦର ବିଛାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ତୂପ ଟାଇପରେ ଥାଏ, ସେ ସ୍ତୂପକୁ ଚାଦର ବିଛେଇକି ଫୁଲ ହରିକା ସଜାନ୍ତି। ସାକାର ପୂଜା ଅଛି, ନାହିଁ କହିପାରିବାନି। ଜୈନ ଧର୍ମରେ ବି ଯିଏକି ନିରାକାରକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଜୈନ ଧର୍ମରେ ବି ଭଗବାନ ଜୈନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପୂଜନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜୈନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଭଗବାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପୂଜନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜନ୍ତି, ମା ମେରୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମରେ ସାକାର ପୂଜା ଅଛି, ନିରାକାର ପୂଜା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଝା ଧର୍ମକୁ ଯେଝା ଠିକ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଟିକେ ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଡିବେଟ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା, ଈଶ୍ୱର ସାକାର ନା ନିରାକାର, କୋଉ ଉପାସନା ଠିକ। ଯିଏ ସାକାର ରୂପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫଟୋକୁ ପୂଜୁଛନ୍ତି ସିଏ ଠିକ, ନା ଯିଏ ନିରାକାର ରୂପରେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଠିକ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା। ତ ଈଶ୍ୱର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ, ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ, ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୂପରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା, ସେ ସତ୍ୟ, ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ନିରାକାର ରୂପରେ, ନିର୍ଗୁଣ ରୂପରେ, ଅଲେଖ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ, ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବାନି, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନନ କରିପାରିବାନି, ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବାନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ରୂପରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତତ୍ଵ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଠିକ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ,
तांको भितरे तांको द्वारा ये ब्रह्मांड को रचना करिसंती। ईश्वर ठारू से चैतन्य ब्रह्म ठारू आकाश सृष्टि हिंची, आकाश रु वायु, वायु रु अग्नि, अग्नि रु जल, जल रु पृथ्वी, पंचभूत से ईश्वर ठारू सृष्टि हिंची। पंचभूत अनित्य पदार्थ रूपरे माया रूपरे ए संसार रे व्यापिकी अच्छी। तो ये दुईटा कथा को ध्यान देकरी बुझंतु, मन रे बसई दियंते कथा को। नित्य पदार्थ रूपरे, आत्मा रूपरे, चैतन्य सत्ता रूपरे ईश्वर हृदयर गभीरतम प्रदेश रे अछंती, इंद्रिय मनर ऊर्ध्वरे अछंती, किंतु माया रूपरे अनित्य पदार्थ रूपरे अनात्मा रूपरे बाहर व्यापिकी अछंती। ये दुईटा को मन रखिथिबे। आगामी दिन में आम ये दुईटा को आहरी गभीर भाव में चर्चा हवा। तो ये देखंतु, उपासना रे जेते स्थूलरु सूक्ष्म उपासना करिवे सेते शीघ्र तांको पाखरे पहुंच। बुझी पारसंती? आध्यात्मिकतार उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति करिबा, मुक्ति मोक्ष प्राप्ति करिबा। मन जो माया बंधन रे बांधी छंदी हिंकी अछि, मन जो मिथ्या को सत्य मानि नहीं, सत्य को चिन्हि पारुनी, परखि पारुनी, से मन को सत्य को देखेबा, नित्य पदार्थ संगे समाहित कर चिन्हैबा, मन को मुक्त करिबा। ईश्वर उपासनार उद्देश्य कौन से भौतिक वस्तु पदार्थ प्राप्त करबा नुहे, ईश्वर प्राप्ति करबा। से चिरंतन शक्ति को, से नित्य पदार्थ को अनुभव करबा। उपासना रे जेते स्थूल साधना रु सूक्ष्म साधना आड़ को जिबे सेते सहज रूपरे, सेते सरल रूपरे ब्रह्मानुभूति करि परिबे, ईश्वर प्राप्ति करि परिबे। एठी प्रश्न उठे, ईश्वर जदि भितरे चैतन्य सत्ता रूपरे अछंती, से ईश्वरंक अंश किंबा से ईश्वर ही जदि बाहर माया रूपरे अछंती, ताले बाहर कहीं उपासना करबानी? बाहर जो उपासना करुचे सेठी त्रुटि कौन हबो, असुविधा कौन हबो? आकु बुझंतु। बाहर जेतु माया रूपरे अछंती, बाहर जेकोसी आकार आकृति को, शरीर को, फोटो को, चित्र को, मूर्ति को आपण उपासना करसंती, से अनित्य अटे, से नित्य नुहे। जेकोसी रंग को रूप को आपण देखिबे, से रंग रूप प्रति मन रे विचार आसीबो, मन रे भावना जागृत हबो। भाबि नियंतु, मु भगवान कृष्ण को साकार रूप रे पूजा करुछि, भगवान कृष्ण को मूर्ति को मु पूजा करुछि। जेतले भगवान कृष्ण को मूर्ति को मु पूजा करबी, अजाणतरे मो मन रे विचार आसीबो, भगवान कृष्ण कालेय सर्प को माने कालिय नाग को ध्वंसन करथिले, भगवान कृष्ण गिरि गोवर्धन को काणी आंगुठी रे उठैथिले, भगवान कृष्ण कंस को संहार करथिले, भगवान कृष्ण बहुत बलशाली, भगवान कृष्ण दुष्टंक ठारू भक्तों को रक्षा करती। मान देखो विचार आसुची, भगवान कृष्ण ए परिका हिंथिबे, से परिका हिंथिबे, तांको वर्ण को आमे चिंतन करिबा, तांको रूप को स्वरूप को चिंतन करिबा, तांको आकार आकृति को चिंतन करिबा, तांको गुण को, तांको माने तांकर जहाँ भी चिन्ह वर्ण को आमे चिंतन करिबा। ता माध्यम रे हबो कोन? टिके पूर्व आमे बुझुतले, ईश्वर जो आत्मा अछंती, जो नित्य पदार्थ अछंती, से निर्गुण अवस्था रे अछंती। निर्गुण अवस्था, तांकर कौन से गुण वर्ण नाही। आमे कहि परिबानी ईश्वर कला, ईश्वर धला, ईश्वर मनीष परिका, पशु परिका, किंबा ईश्वर गच्छ परिका। ईश्वर को आकार को वर्णना करि परिबानी। काहे करि परिबानी? से एक शक्ति, से आधार, से मनर ऊर्ध्वरे अछंती। जे मनर ऊर्ध्वरे अछंती, तांको मन माध्यम रे मनन करि परिबानी, चिंतन करि परिबानी, तांको स्वरूप को आमे मन रे मध्य धारणा करि परिबानी। तेनु करी इथि जो आमे भौतिक उपासना करचे, मूर्ति पूजा, फोटो पूजा करचे, ता माध्यम रे मन गुण युक्त ही रहिबो, निर्गुण अवस्था को जीवनी। बुझि पाछंती? मन तीनिटा गुण रे परिचालन करे, सत्व गुण,
रजोगुण तमोगुण ए तीनटा गुण कथा हम पछरे कथा हवा केवल एतिके एठी बुझंतु मन तीनटा गुण रे बांधी छंदी थाए कार्य करे कार्यरत थाए मन निर्गुण अवस्था को गले निराकार अवस्था को गले निर्गुण अवस्था से ईश्वर सत्ता संगे समाहित हब किंतु जे पर्यंत आप भौतिक उपासना करसंती स्थूल पूजा करसंती स्थूल उपासना करसंती सेठी कौन होची मन रे चिंता चिंतन करुछंती से माने किछि भाबुसंती सेठी ईश्वर बलशाली हिंथिबे ईश्वर मते धन देबे जस देबे असुविधा रे सहारा हेबे ईश्वर सहारा होसंती ईश्वर सब किछि करुसंती से चैतन्य ब्रह्मंक ठारु जेहेतु ए ब्रह्मांड निर्माण होइछि ए ब्रह्मांडर परिचालन ए शरीरर जीवन जीवी माने वंचित रहिबा ए शरीर भितरे जहा भी क्रिया होउछि जहा किछि भी होउछि तांकरे माध्यम रे होउछि से चैतन्य सत्ता ही करुसंती किंतु जेतरा हमें भौतिक उपासना माध्यम रे फोटो पूजा मूर्ति पूजा करिबा जे कोनोसी फोटो को भी पूजिबा जे कोनोसी मूर्ति को भी पूजिबा भजिबा से फोटो पछाड़े से मूर्ति पछाड़े किछि ना किछि कथा प्रथा थाए भगवान राम रावण को मारिथिले बहुत बढ़िया राजा थिले शरीर तांको स्वरूप तांको गुण तांको वर्ण से करिथिबा साहसी कार्य मन सोडसिटी विचार रे बांधी होउछि मन सत्व रज तमो गुण रे रहउछि निर्गुण अवस्था को जाई पारनी बहुत सूक्ष्म कथा बहुत गभीर कथा में चर्चा होउछे ध्यान दे बुझंतु जोंठी स्थूल पूजा अछि स्थूल पूजा रे जेहेतु आकार आकृति अछि स्वरूप अछि से स्वरूप रे से आकार आकृति रे किछि विचार रहिबो किछि आकांक्षा रहिबो अजाणत रे मन भितरे सकाम भक्ति जागृत हबो सकाम भक्ति माने कामना युक्त भक्ति भक्तिर उद्देश्य से चिरंतन सत्ता आत्मतत्व को चिन्हिबा ईश्वर प्राप्ति करिबा किंतु अजाणत रे साकार पूजा करी आमे ईश्वर प्राप्ति नुह ईश्वरंक ठारो किछि प्राप्त करिया पई प्रयास करिबा अजाणत रे मनर प्रकृति एटा मनर प्रकृति जेतले भी रंग रे रूप रे देखिबा नाम रे स्वरूप रे चिन्हिबा सेठी कोन हबो से नाम संगे किछि कथा प्रथा जोड़ी हेंकि अछि सेहि पर आमे परखिबा सेहि पर आमे भी ईश्वरंक ठारो किछि प्राप्त करिया पई प्रयास करिबा आ जोंठी भी गुण अछि चिन्ह वर्ण अछि आकार स्वरूप अछि सेठी मन रे वृत्ति रहिबो मन शांत हबनी मन स्थिर हबनी मन मौन हबनी मन अंतर्यात्रा करी से सत्ता संगे समाहित हबनी बुझी पारसंती द्वितीय स्वरूप रे आकार आकृति रे भेदभाव थाए भेदभाव कौन भाविनी जे जे भगवान शिव को पूजंती से माने मानि थांती शिव बड़ शिव श्रेष्ठ शिव उच्च शिव ही ठीक जे भगवान विष्णु को मानि थांती से माने भावी थांती भगवान विष्णु ठीक से माने सत्य माने तांको आचरण ठीक से उच्च शिव पुराण पढ़िबे शिव पुराण रे भगवान शिव को श्रेष्ठ उच्च बोलिक देखा जाए विष्णु पुराण पढ़िबे सेठी भगवान विष्णु को उच्च श्रेष्ठ देखा जाए बुझी पारसंती तो स्वरूप रे भेद अछि स्वरूप रे पातर अंतर करिवार संभावना भी अछि जो जाति धर्म को लेकर अनेक धार्मिक झगड़ा होते स्वरूप रे भेद थाए भिन्नता थाए किए ईश्वरंकर ना किछि देले किए ईश्वरंकर किछि रूप देले रूप रे गुण रे भेद जेहेतु थाए सेठी एकता आसेनी समता आसेनी समस्ते कौन थांते ईश्वर एक समस्ते कथा को व्याख्या करथांते बड़ बड़ मंच ऊपर बड़ बड़ साधु माने बसिकिरी वर्णना करथांते ईश्वर एक ईश्वर एक ईश्वर एक फिर से कौन थांते रूप रे रंग रे ये ठाकुर श्रेष्ठ से ठाकुर छोट ये से आउ का ठारो आउ किछि सुनिले आपण ठाकुर टिके बर जल्दी देबेनी आम ठाकुर बहुत शक्तिमान बहुत जल्दी ये ठाकुर बहुत जल्दी बर दियंती ये ठाकुर श्रेष्ठ से कौन करती ठाकुर को परिवर्तन कर दियंती किए शिव को पूजुले किए विष्णु को पूजिबे किए विष्णु को पूजुले से माँ काली को पूजिले किए माँ काली को पूजुले से जीशु को पूजिले कि जीशु को पूजुले से अल्लाह को पूजिले कि अल्लाह को पूजुले से फेरे कृष्ण को पूजिले धर्म परिवर्तन
ପୂଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଈଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାକାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିରାକାରରେ ଏକତା ଅଛି, ନିରାକାରରେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ସାକାର ଉପାସନା ଠିକ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ, ଫଟୋ ରୂପରେ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ରୂପରେ ଉପାସନା କରିବାନି। ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କାହିଁକି କରିପାରିବେନି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ସାକାର ପୂଜାରେ ସକାମ ଭକ୍ତି ଜାଗୃତ ହୁଏ, ମନରେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ ଥାଏ, ମନ ବିଚାର କରେ, ମନ ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏନି, ମନ ନିଜ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହୁଏନି। ଯଦି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଯମ ନିୟମ, ଯମରେ ଯେଉଁ ସାଧନା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯମରେ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ। ନିୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପୋ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଯମ ନିୟମ ପରେ ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସାଧନା ହେଲା ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ସାଧନା, ଅହିଂସା ମାନେ ହିଂସା କରିବାନି, କାହାରିକୁ କଟୁ ବଚନ କହିବାନି, କାହାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ମନସା ବାଚା କର୍ମଣା, କାହାରିକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବାନି। ସାଧନାରେ ପ୍ରଥମ ସାଧନା ହେଲା ଅହିଂସା, ତାପରେ ସତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି କ'ଣ, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶରୀରର ସଂସ୍କାର ଶୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ସେ ଶରୀରର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ସେ ଶରୀରର ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୟା, କରୁଣା, ଏ ନମ୍ର ଭାବନା ଆସୁଛି। ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଭେଦ ରହୁନି, ସମଦୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧିବତ୍ ସାଧନା କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରବତ୍ ସାଧନା କରିବେ, ମନ ଶାନ୍ତ ହବ, ମନ ସ୍ଥିର ହବ। ମନ ସ୍ଥିର ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ, ନିର୍ମଳ ରହିବ। ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତୃପ୍ତତା ରହିବ, ତା ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅଧିକ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାନି, ଲୋଭ କରିବାନି, କାହାକୁ ଠକିବାନି, କାହାକୁ ଭଣ୍ଡିବାନି, କାହାର କୁଚିନ୍ତନ କରିବାନି, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟଙ୍କର ସାହାରା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧନା, କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ। ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାଧକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ, ସାଧକ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେବେ, ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ବି ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏସବୁ ଆଚରଣକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କରିବେ, ଲୋଭରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଥାଏ, ଲୋଭ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଅଜାଣତରେ ପାପ କରୁଥାଏ, ପାପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ପଳାଉଥାଏ, ଅଶାନ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅଜାଣତରେ କରୁଛି ଏସବୁ କଥାକୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଧିବତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରବତ୍ ସାଧନା କରିବା, ଯେଉଁ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟରେ ବିବେକ ପରେ ବୈରାଗ୍ୟ, ବୈରାଗ୍ୟ ପରେ ସମାଧି ଷଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି। ସମାଧି ଷଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ ସାଧନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା, ଦମ ସାଧନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ଦମନ କରିବା। କାହିଁ ଦମନ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଅନେକ ଥର ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଯେତେ ସୁଖ ଦେବା, ସେ ସେତେ ଭୌତିକ ସୁଖରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇକିରି ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ହେବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ସଂସାରରେ ଜୀବିତ ଅଛି କିମ୍ବା ଶରୀର ସଂସାରରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି, କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛି, ନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଙ୍ଗୁଛି, ଜୀବ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଖୁଛି। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଧାରରେ ଶରୀର ସଂସାରରେ ଜୀବିତ ଅଛି, ଶରୀର ସଂସାରରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରରେ ଏକ ଅନୁଶାସନ ନାହିଁ, ଶରୀର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆସି ଏକ ଅନୁଶାସନ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁନି, ଶରୀରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବନି, ଶରୀର ଭିତରେ ମଣିଷପଣିଆ ରହିବନି। ଅନୁଶାସନ ବିହୀନ ଜୀବନ ପଶୁ ସମାନ, ଶରୀର ପଶୁ ପରିକା ହିଁ ଯିବ। ତେଣୁକରି ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଳୀନତା ଆସିବ, ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି?
माने जितने इंद्रिय शांत ही जाती, इंद्रिय स्थिर ही जाती, इंद्रियों माध्यम रे मन भी शांत हो जाए, मन भी स्थिर हो जाए, मन भी मौन हो जाए, निद्रा घटित हुए। निद्रा अवस्था को पलाओ, बुझिपार निद्रा अवस्था को परखंतु। निद्रा अवस्था कान को किसी शुगुनी, जीभ किसी चाखुनी, नाक माध्यम किसी बास्ना बारी पारुनी, शरीर स्पर्श को भी किसी स्पर्श को नहीं पारुनी, शोई पड़ी आम। तो इंद्रियों भितर जो संयमता आसी थाए, इंद्रिय जो अंतर्मुखी हो जाती, इंद्रिय जो स्थिर हो जाती, इंद्रियों माध्यम रे मनरे शीतलता आसे, मनरे स्थिरता आसे, मन शांत हो जाए, मन मौन हो जाए, मौन हो जाए। आमे अष्टांग योग रे एक साधना अच्छी प्रत्याहार, प्रत्याहार साधना। प्रत्याहार जो घटित हुए इंद्रिय नियंत्रित हो जाती, इंद्रिय तृप्त हो जाती। प्रत्याहार साधना माध्यम रे नियंत्रित हो जाती, मन शांत हो जाए, मनरे एकाग्रता आसी जाए। मनरे जो एकाग्रता आसी जाए, मन धारणा माध्यम रे निरुद्ध अवस्था को पलैब, मन मौन हो, मन स्थिर हो। मन स्थिर हेले कौन हम? मन स्थिर हेले मन से आत्मसत्ता संगे समाहित हो, मन से ब्रह्म शक्ति संगे एकाकार हो। से स्थिति को जाकरी आमे निजर आत्मतत्व को चिन्हिबा। ये प्रोसेसिंग को बुझंतु। शरीर प्रथमे आमे शरीर को अनुशासन सहित जीवन यापन कले, शरीर अनुशासन माध्यम रे इंद्रियों भितरे स्थिरता आसिला, इंद्रिय नियंत्रित हेले, इंद्रियों माध्यम रे मन भितरे शीतलता आसिला, मन तृप्त हैला, मन नियंत्रित हैला, मन पवित्र हैला, मन शांत हैला। मन जेतरे शांत हैला, मन मनर स्वामी संगे से आत्मशक्ति संगे से ब्रह्म सत्ता संगे समाहित हुए, जहाँ को आमे ध्यान कहूचे। ध्यान रे मन मौन हो जाए, मन निरुद्ध अवस्था को पलाए। निरुद्ध माने मन आउ किछि कार्य करूनी, मन जो गपुला, मन जो चिंतन करुला, मन जो विभिन्न मनन चिंतन, ये वस्तु से पदार्थ, टंका सुना, घर परिवार, देह मुंड सांग साथी केते कौन गपुला, मन चपर 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 केते कौन गपुला, मन मौन हो गला, मन शांत हो गला। मन जो शांत हो जाए, मन जो स्थिर हो जाए, से स्थिरता माध्यम रे मन समाधि अवस्था को जाए। आमे समाधि कथा, तुरीय कथा आगामी चर्चा रे कथा बा, साधनार बहुत गभीर कथा आमे आगामी चर्चा रे कथा बा। एबे केवल एतिक बुझंतु, मन रे शीतलता हेले ही मन आत्मा संगे समाहित हब। मन आत्मा संगे समाहित हेले ही मन तुरीय स्थिति को जीव। मनर जागृत अवस्था में समस्ते अनुभव करेचे, चिन्हिचे, चेंकरी संसार को देखिबा जागृत अवस्था। मनर स्वप्न अवस्था को आमे परखिचे। स्वप्न अवस्था माने राति रे सोईकरे जो स्वप्न को देखुचे। मनर सुसुप्ति अवस्था को मध्य आमे परखिचे। सुसुप्ति अवस्था माने कोन? गाढ़ निद्रा अवस्था। मनर जो चतुर्थ अवस्था अछि, बहुमूल्य अवस्था, पवित्र अवस्था, जहाँ को आमे तुरीय अवस्था कहूचे। से तुरीय अवस्था को मन सेतबेले जीव जेतबेले मन समाधि अवस्था को जाई परिबो। समाधि अवस्था को मन केतबेले जीव? जेतबेले मन निरुद्ध अवस्था को जाई परिबो। निरुद्ध अवस्था को मन केतबेले जीव? मन जेतबेले शांत हबो, स्थिर हबो, पवित्र हबो। एटा साधना। आ माध्यम रे अंतते जाईकरी आपण से ब्रह्म सत्ता संगे समाहित हेबे, एकाकार हेबे, निजर सत्य को चिन्हिबे, निजर सत्य को चिन्हिबे। सेठी जाईकरी ये महावाक्य सफल हबो, तत् त्वम असि, तत् त्वम असि, तत्वमसि महाभाग्य। तत्वमसि माने तत् माने सीए, त्वम माने तुमे, असि माने अट, सीए तुमे ही अट। जो ईश्वरीय सत्ता को आपण खोजुसंती, चिन्हा पाई, ईश्वर प्राप्ति करिया पाई चेष्टा करसंती, से शक्ति आपण निजे ही अटंती। प्राप्तस्य प्राप्त, जोंटा प्राप्ति हेंकरे अछि सेया को ही आपण प्राप्त करिवे। किछि निज ठार भिन्न पाइबेनी, किछि हजि थिबा भौतिक वस्तु पदार्थ को पाइबेनी, किछि अलौकिक शक्ति आसिक आपण भितर पसिबनी। से शक्ति एबे भी अछि,
से चैतन्य सत्ता एबे भी आपण से ब्रह्म स्वरूप रे अछंती किंतु मनर स्तर रे आशा अभिलाषा इच्छा वांछना भौतिक बंधन रे बांधी छंदी हिंकरे अछंती बुझी परसंती तो मन शुद्ध हब केतळे जेतळे मन साधना मार्ग को आचरण करी साधना रे गुरु जहाँ भी आदेश देबे निर्देश देबे साधना को देबे से प्रत्येक कथा को जेतळे आपण आचरण करिवे मन मौन होला परे मन से ब्रह्म सत्ता संगे समाहित हब से तत्व को चिन्हिबे निजर सत्य को चिन्हिबे एबे आपण निज को सीमित शरीर मानिसंती ए देह मानिसंती निज को वंचित रखा विभिन्न प्रचेष्टा करसंती ए खाद्य खाइले शरीर पे आरोग्य एक्सरसाइज करिबा आमे जोग करिबा आमे भल घरे रहिबा भल पोशाक पिंधिबा भल गाड़ी रे बुलिबा आमे अधिक दिन बंचिबा बड़ पद को प्राप्त करिबा ये सब आशा अभिलाषा रे अजाणत रे आपण विभिन्न योजना करसंती पैसा बहुत एकत्र करी रखिबा दरकार पैसा नथिले बंची परिबानी पैसा नथिले पर पीढ़ी को आमे आमे सुरक्षा देई परिबानी पैसा नथिले एसी घरे रही परिबानी बहुत असुविधा हबो पैसा पर पदवी पदवी नहले प्रशंसा हबनी लोक हमको खातिर करिवेनी माने विभिन्न विचार रे मन को बांधी छंदी के रखिसंती विभिन्न विचार रे आपण संसार रा आधार आपण शरीर इंद्रिय मनर आधार मनर साक्षी आपण सेई द्रष्टा जो स्रष्टा ए संसार को सृष्टि करिसंती आपण सेई स्रष्टा सेई आत्मा सेई ब्रह्म जो ब्रह्म ए सृष्टि को परिचालन करसंती सृष्टिर कर्ता माने केते बड़ जिनस भावंते एटा छोट मोट जिनस न विराट जिनस तांको ठार बड़ ए संसार किछि नै ईश्वर प्राप्ति कला परे आ प्राप्त करिया पय किछि भी ए संसार न थाए से प्राप्ति परे मन तृप्त हो जाए मन संतुष्ट हो जाए मन रे आ कोन इच्छा वांछना न थाए बुझि परछन केते बड़ प्राप्ति तेनु करी इठी आ पर जो कथा को हम चर्चा हबा पय जाउचे आको ध्यान दे बुझंतु आको बुझिया पय चेष्टा करंतु जेतळे मन ईश्वरंग संगे समाहित हेंकरी मन तुरीय अवस्था को जाइकरी मन निजर ब्रह्म सत्ता को अनुभव कर दिए से स्थिति रे जेतळे ध्येय ज्ञान ज्ञाता एक ही जानती साधक ए संसार एकता को अनुभव करती जुआड़ देखुसंती से निजे ही जहा को देखुसंती सीए ही जी देखुसंती जहा को देखुसंती सी अभिन्न अद्वैत ए संसार एकता को से जेतळे अनुभव कर दियंती उपभोग कर दियंती साधना रे जेतळे सिद्धि प्राप्त हुए से समय रे सी ए कथा को बुझी पारंती चिन्हि पारंती सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सब किछि ब्रह्म ही ब्रह्म को सब किछि ब्रह्म ही माने फिर ब्रह्म को अलग निज को अलग भाबियन सब किछि मोहि अहम ब्रह्मास्मि मोहि ब्रह्म सब किछि मोहि मो छड़ा किंचित भी किछि भी अलग नाही मोहि सब किछि मोहि प्रत्येक रंग रूप मोहि प्रत्येक आकार स्वरूप मोहि प्रत्येक गुण धर्म मोहि सेठी तांको भितरे समदृष्टि आसे समदृष्टि समता आसे से जने जोगी भितरे जने रोगी भितरे जने भोगी भितरे जने भिकारी भितरे जने राजा भितरे कौनसी पार्थक्य करंतिनी सी चिन्हि पारि थांती से बुझी पारि थांती जने जोगी जने भोगी जने भिकारी जने चक्रवर्ती ये सब मोरी ही स्वरूप ये सब मोरी ही आकार ये सब मोरी ही माया लीला जोगी भितर भी मोही अच्छी भोगी भितर भी मोही अच्छी राजा भितर भी मोही अच्छी भिकारी भितर भी मोही अच्छी मु अभिन्न मु अद्वैत से स्थिति रे नित्य पदार्थ को अनुभव कला परे आत्म सत्ता को चिन्हिला परे आत्म साक्षात्कार कला परे से स्थिति को जाइकरी जने व्यक्ति कहि पारिबो साकार पूजा निराकार पूजा उचित से स्थिति को जाइकरी काहेकि ना तांको भितरे भक्ति को धारण करिया को पड़ेनी भक्ति उत्पन्न हुए ब्रह्मानुभूति कला परे जने जने साधक को
प्रेम करिया को पड़ेनी, प्रेम उत्पन्न हुए, शुद्ध प्रेम, शुद्ध स्नेह, शुद्ध ममता। एबे जो प्रेम ममता सराग आम मन उत्पन्न होची ता पछाड़ किछि ना किछि सकामता अछि, किछि प्राप्त अछि, किछि आशा अछि। ये अभिनय, ए कथा टिके कट लागिबो किंतु एटा सत्य। मो भितरे जो ब्रह्म, मो भितरे जो आत्मा, प्रत्येक शरीर भितरे केवल मनुष्य नुहे, पशु पक्षी तरु लता पिंपुड़ी हाथी कीटाणु भूताणु समस्तक भितरे से ब्रह्म ही अछंती, समस्तक आधार रूप से ही अछंती। से कहवा ठीक हम नचेत आउ टिके जदि सूक्ष्म भाव में आपन कथा को बुझी पारे चिन्ह पारे मु ही अच्छी, समस्तक भितर मु ही अच्छी। गोटे माछ भितर, गोटे कुकुड़ा भितर, गोटे छेली भितर, गोटे बतक भितर, घुषुड़ी भितर, समस्त भितर मु ही अच्छी, मु ही अच्छी। ये भाव को मन रे रखा दरकार। जदि ए भाव को न रखिकी आमे कहबा मु निराकार उपासना करछि, मु ठीक करछि, जे साकार उपासना करछि से भूल, से ठीक न, से मूर्ख, से अज्ञानी, से किछि पाइबनी, मु ज्ञानी। ना 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 ना, ए भाव रखिया नहीं। सी जे साकार उपासना करछि से बिचरा जानिनी, से साधनार सटीक मार्ग को पाइनी, से हेम पारे गुरु को पाइनी, से जो परिका माँ को पाखरु तांग बाबा को पाखरु शिखिछि, जो परिका बंधु मित्र ठारू चिन्हिछि, से परिका से उपासना करछि। आमे तांको घृणा करबानी, तांको विरोध करबानी, व्यंग्यात्मक हास्यास्पद कथा तांको कहबानी, तांको बुझेबा, तांको बुझेबा। देख बाबू, तमे जो ईश्वर को उपासना करुଛ, से ईश्वर को किए निर्माण करछंती? ईश्वर निर्माण करछंती, साक्षात प्रकट हिंसंती ना आमे तैयारी करछे? जदि आमे तैयारी करछे, आमे ईश्वर को तैयारी करि परिबा कि? किछि एमितिया कथा कहिकरी तांको मन को ठीक मार्ग को आनिबा पई चेष्टा करिबा। आ सबुठारो बड़ साधना, सबुठारो बड़ साधना हला जदि आपण निजको साधक मानिसंती, जदि आपण निजको ईश्वर प्राप्ति करिया पे साधना मार्ग रे अछंती बेली मानिसंती, ताहले सर्वप्रथमे समदृष्टि आणंतु, जाति धर्म को त्याग करंतु। किए निजको मुस्लिम मानिछि से जो प्रकार चिन्हिछि से प्रकार मानिछि, किए निजको क्रिश्चियन मानिछि से जो प्रकार छोट बेले चिन्हिछि, माँ बापा बुझिछि से मानिछि, किए निजको जैन, किए निजको बौद्ध, किए निजको सनातन, जी जहाँ मानिछि मानिछि, किछि असुविधा नहीं। किंतु आमे तो जानिचे ना से ईश्वर ठारू आमे समस्त जन्म होइछे, आमे तो जानिचे ना से ईश्वर ठारू पंचभूत, पंचभूत रे प्रत्येक शरीर गढ़ा होइछि। तो समदृष्टि रे देखिबा दरकार, सम्मान सहित, स्नेह सहित, प्रेम सहित समस्त को देखिबा दरकार। जदि आध्यात्मिकता को सटीक भाव में आपण जानिथिबे, ताहाले सेठी व्याख्या देबे, ताहाले तांको बुझिया पे चेष्टा करिवे। अनावश्यक कहार को भूल दर्शनकरी निजे जितिया पे जदि चेष्टा करिवे, ताले मन रे अजाणत अहंकार जागृत हबो, अहम भाव जागृत हबो। आ ये कथा को मन रे बिल्कुल बसि दियंतु, अहंकार अहम भाव रे मन शांत हबनी, मन स्थिर हबनी, मन मौन हबनी, मन माया रे बांधी छंदी हबो।